कुछ समझ ना आए तो देन बेशक मुझे स्टॉप कर दीजिएगा. But equilibrium is the state at which the concentration of reactants and products do not change with the time. And it can also be defined as a state of process in which the properties like temperature, color, pressure, concentration of the system do not show any change with the time. ठीक है. So in chemistry we define equilibrium like this कि concentration of the reactant or product ना हो या कुछ temperature, color, pressure, concentration etc. they do not change with the time. So we can classify the equilibrium broadly into two categories. एक को हम बोलते हैं physical equilibrium and the other is chemical equilibrium. So what is physical equilibrium? If the opposing processes involve the physical change, for example melting of ice water, then the equilibrium is called the physical equilibrium. That the change that is reversible but that can be physically that involve only physical changes. ठीक है. Chemical equilibrium वो होता है कि if the opposing processes involve the chemical changes like any chemical reaction, for example ये previously आप FSC में पढ़ के आए होंगे कि the reaction between hydrogen and iodine to form hydrogen iodide. ठीक है. तो hydrogen and iodine chemically combines with each other to form hydrogen iodide. And the hydrogen iodide, and there is equilibrium between the hydrogen and iodine and the hydrogen iodide produced, and this type of equilibrium is called the chemical equilibrium. Now why this equilibrium is important and why these ions, we are going to discuss about the ion equilibrium. So why these ions are important. ठीक है. ये ions chemistry में क्यों important होते हैं. बहुत सारे important concepts होते हैं chemistry, even के physics and science के, which depends on the concentration of ions, which depend on the concentration of ions. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये है कि ions पे conductivity depend करती है. Should I show the first slide again? Why? This one? This is your first slide. हाँ, ये आपकी first slide है. Okay. Should I move to the next slide? Okay. ये आपको प्रेजेंटेशन जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल भी जाएगी. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझें. जो मैं बता रही हूँ उसको आपको लिखने की जरूरत है कि कुछ पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे तो यू कैन राइट डाउन इट ऑन योर नोटबुक. बट अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं, अपने पास लिख रहे हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी जैसे ही क्लास एंड होती है, तो आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू. ठीक है. So in the next slide हम क्या करते हैं कि electrolytes जो है and electrolytic and non-electrolytic behavior basically depends on the concentration of ion. ठीक है. तो इसको हम ionic equilibrium के substances को we can classify into two categories depending on their ability to conduct the electricity. So these are non-electrolytes and electrolytes. Electrolytes कौन से substances हैं कि which do not which dissociate into constituent ions and thereby conducting the electricity, while non-electrolytes are those we do not dissociate into constituent ions and therefore state or molten states. So for example non-electrolytes की हमारे पास example है sugar solution. sugar को जब भी हम water में dissolve करते हैं तो वो molecules की form में ही dissolve हो जाता है. Ionic form में dissolve नहीं होता. They are non-electrolyte, they do not conduct electricity, but chloride, if the sodium chloride, if you melt sodium chloride or form the aqueous solution, dissolve it in water to form the aqueous solution, then it becomes good conductor of electricity. So that's right. Now these are very basic terms.
And then these electrolytes can further be classified into two categories. एक को हम बोलते हैं strong electrolytes and the other is called weak electrolytes. So what are strong electrolytes? Those substances NaCl जब भी हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, HCl strong acid, strong bases, yes, those salts which are derived from the strong acids and strong bases, they are normally ionized or dissociated in the aqueous solution. So that's why they are called strong electrolytes. On the other hand, there are some other electrolytes which are not completely ionized in aqueous solution, and their dissociation is not 100%. So these are called, or the dissociation is not 100%, or we can say that dissociation is not complete. तो जितनी ज्यादा उनकी डिसोसिएशन लेस होगी, उतने ही ज्यादा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, या उतने ही ज्यादा दे विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑल्दो उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक टेंडेंसीज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की लिटिल टेंडेंसीज होंगी, बट दीज कैन बी क्लासिफाइड एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. अच्छा, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर द टॉपिक ऑफ आयन इक्विलिब्रियम. तो ये जो आयन इक्विलिब्रियम है, दैट इज बेसिकली मोर रिलेटेड टू द but that is actually related to the weak electrolytes, because what happens कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट completely आयनाइज नहीं होता, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे एक सब्सटेंस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ डिसोसिएट हो जाता है, मींस कुछ आयनाइज हो जाता है, और जो बाकी होता है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है. ठीक है. तो एक लिमिट होती है जहां तक एक सब्सटेंस आयनाइज हो जाता है. आफ्टर दैट देयर विल बी नो आयनाइजेशन, and an equilibrium will be established between the unionized species and the ions. ठीक है. जितने उसके आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं एंड जितना वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, उन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, हो जाता है, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द आयनिक इक्विलिब्रियम. दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, एंड वी विल डिस्कस in detail about that ionic equilibrium. In the case of weak electrolyte, the equilibrium is established between the ions and unionized molecules, which can be termed as ionic equilibrium. ठीक हो गया. क्लास गॉट द पॉइंट. दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्दर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो आजकल ओके देखें, आपको पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच आर पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विच आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, या विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. गुड या बैड का हम डिसीजन बाद में करते हैं. देन इलेक्ट्रोलाइट्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. एक को हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. Weak electrolytes are strong electrolytes are those which are completely dissociated in aqueous solution, और उनके पास इतने सारे आयंस होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. फ्लो ऑफ करंट. तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा. तो बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं which completely dissociate in aqueous solution, so उनके पास इतने ज्यादा आयंस होते हैं कि they become the good conductor of electricity. ठीक है. लेकिन weak electrolytes होते हैं कि which do not completely dissociate in aqueous solution. उनके पास ions की amount, जो number of ions होते हैं, they are less, so they are called weak electrolytes. They do not completely dissociate in aqueous solution. तो अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना डिसोसिएट होते हैं. तो अब वो जितना कम डिसोसिएट होंगे तो उतने ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. ठीक हो गया. गॉट द पॉइंट. अप टिल हियर आपको सब बात समझ आ गई. ये एक ऐसी चीज है जो 7th 8th की क्लासेस में आजकल पढ़ाया जाता है, 6th 7th की क्लास में आपको पढ़ाया जाता है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड मोर रिलेटेड टू आवर टॉपिक, एंड दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम.
आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम वहां पे होगा कि देखिए जो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, तो जितना आयनाइज हो जाता है उसके तो आयंस बन जाते हैं, तो बाकी जो बचता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एसिड डाला है, वो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो कुछ उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, वो कुछ आयंस में कन्वर्ट हो गया और बाकी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह गए। तो एक लिमिट होती है जहां पे इतने आयंस बन सकते हैं इस एसिड के, इतना ये डिसोसिएट हो सकता है, इतना डिसोसिएट नहीं हो सकता। तो वो जो अनडिसोसिएटेड टू डिसोसिएटेड फॉर्म होती है उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। आयंस और जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है उसके दरमियान एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं इसको अपनी स्लाइड पे भी आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। In the case of weak electrolyte, the equilibrium is established between the ions and the unionized molecules, which can be termed as the ionic equilibrium. Which can be termed as the ionic equilibrium. Class, up till here, did you got the point? आपको समझ आ गई है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? Because यहाँ से आपका start हो रहा है। सब क्लास को समझ आ गई है? Should I move to the next slide? Okay. So now अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन। जब हम कहते हैं कि कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, तो इस चीज को डिसाइड कौन करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको कौन सी चीज डिसाइड करती है? बेसिकली देयर आर सम बेसिक थियरीज इन्वॉल्वड इन दिस जो आप सबको ही आती हैं। इसको भी मैं जल्दी जल्दी से गो थ्रू करूंगी, बिकॉज ऑल पीसेस की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज जहां से हम एंड बता सकते हैं व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड व्हिच टाइप ऑफ एसिड्स विल। ओके, क्लास आवाज सबको नहीं आ रही? सबको आवाज नहीं आ रही? ओके, वॉइस इज क्लियर, गुड। ओके, अगर सबके साथ इशू है तो देन आई विल स्टॉप, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप, ठीक है। Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory and Lewis theory, these are 3 important theories। और even अगर आवाज इस वो उसमें ओके सो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया, Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis theory are 3 important theories which discuss about the strength of acids and bases, which defines acids and bases, and आपको पता है कि अब although इन theories को अगर हम categorize करें तो one theory will be better defining acids and bases than the other। मतलब मॉडिफिकेशन में ब्रॉन्स्टेड-लोरी आई और उसकी मॉडिफिकेशन में लेविस थ्योरी आई, लेकिन इन तीनों थ्योरीज को ऑल्दो एक थ्योरी दूसरे की शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए आई थी, बट अप टिल नाउ कि ये थ्योरीज को प्रेजेंट किए हुए भी इतना अरसा हो गया है, all the 3 theories are very important to define the acids and bases, and they are very important to define the strength of acids and bases। हम किसी भी थ्योरी को रूल आउट नहीं कर सकते, हम किसी भी थ्योरी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अप टिल नाउ हम किसी भी थ्योरी को छोड़ नहीं सकते, और these 3 theories are important। these are very basic, this is very basic concept which I'm going to tell you, ठीक है। so पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपने। कौन कौन सी सबसे पहली थ्योरी आपके पास आती है? Arrhenius theory। Arrhenius ने क्या कहा था कि which produces any substance which produces a positive ion in aqueous solution is called acid, ठीक है। Anything when dissolved in water it gives H positive or hydronium ion, तो उसको हम कहते हैं दैट इज एसिड। फॉर एग्जांपल HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो इट फॉर्म्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो इट इज एसिड। और इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl when dissolved in reacts with HCl when reacts with water, liquid water, तो it forms H3O positive plus Cl negative, ठीक है। तो these are called acids, ठीक है।
Okay, and then base is a substance which produce OH negative when dissociating in water. For example, NaOH produces OH negative when dissolved in water, so that's why it is a base. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी theory आ जाती है. हाउ इट इज मॉडिफाइड थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस ऐसे थे जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड नहीं करते या OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में प्रोवाइड नहीं करते, बट इवन देन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वर एसिडिक और बेसिक. सो to overcome that deficiency, Bronsted-Lowry ने जो theory दी थी उसमें क्या है कि any substance that can donate proton to other substances is called acid and which can accept H positive ion या proton. इसके लिए हम although this is H positive ही है, लेकिन इसके लिए term proton use किया जाता है. term proton इस वजह से भी use किया जाता है क्योंकि H positive का मतलब है कि पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिंगल प्रोटॉन ही है. तो उसने बोला any substance that can donate proton H positive to other substances is called acid, like HNO3 plus H2O, NO3 negative plus H3O positive. ठीक है, तो इसमें HNO3 ने अपना H वाटर को दिया. ठीक है, तो अब आपके पास ये नाइट्रेट आयन एंड साथ में H3O पॉजिटिव फॉर्म हो गया, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया. तो HNO3 is a proton donor. ठीक है, it can donate the proton into ammonia by giving its proton, by donating its proton to water. So that's why it is acid. And the water which is accepting the proton over here is base. ठीक है, so acid which can donate the proton, and base is a substance, ये इसके ऑपोजिट है कि विच कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन. फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ये प्रीवियस हमने एग्जांपल में ये थोड़ी सी ओवरलैप की हुई. सिंपल है, अमोनिया प्लस वाटर व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, अमोनिया वाटर से एक प्रोटॉन ले लेता है और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, लाइकवाइज कार्बोनेट है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर तो इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर और ये HCO3 बाइकार्बोनेट एनायन में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा and then OH negative. So that's why it is base, because it is accepting a proton from the water. ठीक है, ओके. अगर अब इस एग्जांपल में देखें, ब्रॉन्ज इन तीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आयन इक्विलिब्रिया है, इन टर्म ऑफ आयन इक्विलिब्रिया है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट. इसके हम बहुत सारी टर्म्स को इन फ्यूचर यूज भी करेंगे. एंड most important concept which was given by the Bronsted-Lowry is the concept of conjugate acid base. ठीक है, conjugate acid base concept दिया था Bronsted-Lowry ने, that was very important, and that concept is being used in most of the ion equilibrium concept. ठीक है, so water को हम amphoteric बोलते हैं. This is again one of the achievement of the Bronsted-Lowry acid base concept. अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो वाटर अगर इन दोनों के केसेस में वाटर इज acting as an acid because it is donating its proton to ammonia and carbonate anion. So that's why in दोनों के केसेस में ये आपके पास as an acid act कर रहा है, but water can act as acid with a strong base and it can act as a base with a strong acid. So that's why this is called amphoteric. This substance is called amphoteric in nature. Amphoteric वो होता है जिसकी dual nature होती है, dual behavior होता है, acid के साथ as a base और base के साथ as a acid act करता है. ठीक है, so one of the important concept again which was discussed by the Lowry-Bronsted concept is conjugate acid base pair. And the conjugate base क्या होता है? The species that remains when one proton has been removed from the Bronsted acid. And the conjugate acid is a species that remains when one proton has been added to the Bronsted base. We will see के how. HCO3 अगर इस एग्जाम्पल में देखें, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि base which is derived from an acid by donating its proton to the base is called conjugate base. असल में ये base है लेकिन ये डिराइव हुआ है एक एसिड से. जब एसिड ने अपना प्रोटॉन लूज किया है तो उसने after losing proton it has formed another substance which has the tendency to take
tendency to accept the proton, so that's why it is called conjugate base. ठीक है. um, okay, I tell you it. Okay, HCO3 is here. HCO3 is acid. HCO3 is acid. Wait. Okay, so HCO3 is an acid and H2 is a base. HCO3 it donates proton to water and it is converted into base. ठीक है, इट इज अ प्रोटॉन डोनर, सो दिस इज एसिड. बट अगर बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन देते हो तो कार्बोनेट एनायन हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोनियम आयन to form the acid. So that's why those bases which are derived from the acids, ठीक है, by the loss of a proton, they are called the conjugate bases. ठीक है, and in case of conjugate acid vice versa is true. ठीक है. अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें जितने भी conjugate acid base हैं, how they are related to each other. Number one, the difference between the conjugate acid and the conjugate base will be one proton. ठीक है, conjugate base और acid के दरमियान जो proton difference होगा that will be one. Means acid minus proton will be equal to conjugate base, and base plus proton will be conjugate acid. ठीक है. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर इज अ कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, एंड इफ द एसिड इज बेस इज स्ट्रॉन्ग द कॉन्जुगेट एसिड विल बी वीक. सो ये एक सॉल्व एक्सरसाइज है जो आपके लिए इंक्लूड की हुई है कि इस इन रिएक्शंस में आपने एसिड बेस और कॉन्जुगेट एसिड बेस को आइडेंटिफाई करना है. यू कैन इजीली डू इट, वेरी सिंपल है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियसली आप इसको कर चुके हैं. आप इसको देख लीजिएगा. ठीक है, इवन अगर आपको इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो यू कैन डिस्कस. ठीक है. then again there are a few more examples. इसको मैं skip कर रही हूँ. Class should I skip? It is very simple and very easy and very just for the sake of revision and just to connect it with our actual topic, I have to discuss these points, and ये आपके कोर्स में भी हैं, बट अगर आप सबको आता है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं. ओके ओके. Then write the conjugate base formula for the following acids. ये भी given है और साथ में आपको answers भी given हैं. Then आपके पास एक कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि इनकी कॉन्जुगेट एसिड्स फार्मूला, इन बेसिस के लिए कॉन्जुगेट एसिड फार्मूला लिखिए. ये आपने खुद करने हैं, ये आपको मिल जाएगी तो आपने खुद इसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है. देन कम्स द थर्ड थ्योरी. ठीक है, थर्ड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज लेविस थ्योरी. एंड लेविस थ्योरी क्या कहती है कि देयर आर स्टिल सम लिमिटेशंस इन द लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एंड दैट के बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन डोनर नहीं होती और या प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होती. Even then they are acids and bases respectively. तो ऐसी स्पीशी को की एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए वी हैव अनदर थ्योरी दैट इज लेविस थ्योरी. एंड लेविस थ्योरी कंसिडर फॉर एग्जांपल मेटल आयंस हैं. मेटल आयंस की एसिडिटी या बेसिसिटी को कोई भी थ्योरी इससे पहले डिफाइन नहीं करती थी. So he was the Lewis who defined the acidic nature of these metal cations. ठीक है. So all those species that can accept the pair of electrons
electrons to form the covalent bond. They are called the acids, and all the substances which can donate the pair of electrons to form a covalent bond, they are called the bases. ठीक है, तो लेविस एसिड के एग्जांपल ये हैं कि जितने भी केटाइंस हैं लाइक H पॉजिटिव, F पॉजिटिव मेटल केटाइंस, ठीक है, and then second category is the molecule which have incomplete octet central atom. For example, BF3 है, BeCl3, although they are molecules, but even after the formation of the molecule their octet is not complete, so they can easily accept the electron pair from the other atoms or molecules, elements or molecules, so they are called Lewis acids. And the molecules with central atom that can expand octets such as PCl3, इसके पास आपको पता है phosphorus के पास 5 electrons होते हैं, so it can expand its octet, and it can expand its coordination number as well. So there are basically 3 categories which can accept the electron to form the covalent bond. ठीक है, so base इसके opposite जो है that is true for the base, and इसको भी हम classify करते हैं कि there are 3 types of species which can be Lewis bases. सबसे पहली बात ये है anions, जो acids में थे that were cations, and in bases these are the anions which are bases. For example, OH negative, CN negative, chloro anions, etc. And molecules whose octet is complete, but even after their complete octet they have the lone pair available for the donation. ठीक है, तो ऐसे भी फॉर एग्जांपल वाटर के पास 2 लोन पेयर, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर है, ROH अल्कोहल्स हैं उनके पास भी लोन पेयर हैं, ठीक है, just like water. So these are also bases. And molecules with non-polar multiple bonds such as alkenes. Yes, and there is another category क्योंकि molecules with non-polar multiple bonds actually they contain the pi electrons, and pi electrons can easily be donated. ठीक है, so that's why these are also categorized as bases under the heading of the Lewis theory. Okay. So again आपके पास कुछ एग्जांपल दी हुई हैं Lewis acid bases की. This ammonia molecule has its octet complete, but even then it contains an unpaired electron, lone pair of electron. So it can donate this pair of electron to BF3, and an adduct is formed. So here ammonia is a Lewis base and BF3 is a Lewis acid. Likewise, these are some examples, and I hope के सबको स्लाइड शो नहीं हो रही, क्लास सबको स्लाइड शो नहीं हो रही, क्विकली जरा सा रिस्पॉन्ड करें कि क्या सबको स्लाइड शो नहीं हो रही है. ओके अन्ना, आप अपना चेक करें कि आपकी साइड पे इशू क्या है. ओके okay, so should I move to the next slide? Okay, मैं क्योंकि okay, should I move to the next slide? Again, it is very simple and okay, अच्छा क्लास, अगर मैं ये कह रही हूँ कि it is very simple and this is for the sake of revision and this is to connect you with the actual topics, so it doesn't mean that this is not the part of your course. These theories are the part of your course. आपके syllabus का हिस्सा हैं acid base theories जो हम पढ़ रहे हैं. इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से questions भी आ सकते हैं, इसमें से tricky questions भी आ सकते हैं. तो इसको आपने जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि जस्ट हमने वो कर लिया, तो इसको पढ़ना भी है, इसको समझना भी है कि दीज थ्योरीज आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं कर रहे, ये आपके कंटेंट का पार्ट है एसिड बेस थ्योरीज. ठीक है, सो अगेन आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप इसको खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, देन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. बेसिकली दिस इज द थिंग इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हमने कहा ना कुछ एसिड्स एंड बेसिस होते हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, एंड कुछ एसिड्स एंड बेसिस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक हैं? उनकी परसेंट डिसोसिएशन से पता चलेगा, उनकी स्ट्रेंथ का उनकी परसेंट डिसोसिएशन से पता चलेगा कि कितना डिसोसिएट है.
डिसोसिएट हुए। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इट इज शोन बाय द अल्फा, ठीक है। ओके, so the strength of acids and bases can be shown as the species which remain undissociated, ratio of the species which remain undissociated in the aqueous solution to the initial concentration of the initial concentration of acid or base which we have used multiply by 100, ठीक है। तो जितनी अनडिसोसिएटेड ज्यादा होगी, अनडिसोसिएटेड स्टेट ज्यादा रह जाएगी, तो इसका मतलब परसेंटेज डिसोसिएशन इतनी कम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसके केस में आपके पास जो इनिशियल जितना हम यूज करते हैं वो सारे का सारा डिसोसिएट हो जाता है। सो दिस रेशियो बिकम्स इक्वल टू 1, सो दैट्स व्हाई 100% डिसोसिएशन हो जाती है। जब 100% डिसोसिएट हो जाता है तो ये आपके पास रेशियो 1 की इक्वल हो जाती है। तो अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, बिकॉज व्हेन इनिशियल जितना हमने यूज किया वो सारा का सारा डिसोसिएट हो जाए तो ये रेशियो 1 की इक्वल आ जाती है। मींस 100, इफ इनिशियली वी हैड 100 molecules and 100 out of 100 are dissociated, then 100 by 100 is equal to 1, so that's why alpha will be equal to 1. so ये आपको शो किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस के केस में अल्फा की वैल्यू 1 होती है एंड देयर परसेंट डिसोसिएशन इज 100%. Okay, then we can write the acid dissociation in 3 different ways. या तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं HCl, वाटर को साथ शो करने की बजाय हम aqueous मेंशन कर देते हैं कि HCl aqueous means कि HCl dissolved in water and it will form H positive aqueous plus Cl negative aqueous. दूसरा वे ये है कि HCl को gaseous और H2O को हम इस तरह से शो कर दें कि लिक्विड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H positive aqueous and Cl negative aqueous फॉर्म करता है. The third way to represent to show this equation is HCl react with water, it forms H3O positive aqueous plus Cl negative. All these 3 equations are equivalent. तो कहीं पे अगर आपको किसी एक भी फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो इट मींस कि these 3 types of equations are exactly they convey the same message, they have the same meaning, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी है, हमारे पास 0.1 मोलर HCl है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? इसको इस तरीके से इन्होंने शो किया है, एक तरीके से शो कर दिए हाइड्रोनियम आयन वाले तरीके से कि इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि 0.1 मोलर HCl अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो पूरा का पूरा 0.1 मोलर Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही है ना। सो इनिशियली जो कंसेंट्रेशन थी वो 0.10 मोलर थी एंड जो आपके पास प्रोडक्ट है Cl नेगेटिव और H3 पॉजिटिव दैट वाज 0, इनकी कोई कंसंट्रेशन नहीं थी इनिशियली बिफोर डिसोसिएशन स्टार्ट। डिसोसिएशन स्टार्ट होने से पहले देयर कंसंट्रेशन वाज 0 एंड देन आफ्टर सम टाइम क्या हो गया कि ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, मींस माइनस 0.10 रह गया और ये सारा का सारा 0.10 Cl नेगेटिव और H3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो फाइनल कंसंट्रेशन में आपके पास HCl 0 मोलर है और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो दोनों 0.1 मोलर है। सो इट मींस इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक हो गया। सो परसेंट डिसोसिएशन कैसे शो करेंगे, HCl 0.1 मोलर था स्टार्ट में, 0.1 मोलर डिसोसिएट हो गया, 0.1 मोलर ही आपने लिया था तो इंटू 100% आपके पास 100% डिसोसिएशन है और इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज 1, ठीक है। ओके, देन स्ट्रॉन्ग एसिड, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लास यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई ना? प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी तक, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई, सबको क्लियर है? क्लास नो रिस्पॉन्स, ओके ओके। अच्छा, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते कौन कौन से, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कोई आपको एसिड उठा के दे देती हूँ कि आप इसकी परसेंट डिसोसिएशन करें, या ऐसे ही मैंने आपसे MCQs पूछ लिए कि फलां एसिड
आपके पास उसकी डिसोसिएशन वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बेस, तो आपको कैसे पता चलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की जो निशानी है वो ये है कोई हाइड्रोहेलिक एसिड आया आपके पास तो दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी मैंने हाइड्रोहेलिक एसिड पूछ लिया तो दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, सबकी आवाज कट रही है क्लास, सबके लिए आवाज कट रही है? क्विकली 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 रिस्पॉन्ड करें जरा मेरे इसको, क्या सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है? नहीं आ रही? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके सो ओके सो निशानियां क्या क्या हैं आपको पता चल जाएगी कि अगर मैंने आपको दे दिया हाइड्रोहेलिक एसिड कोई भी उठा के दे दिया एचएफ के अलावा, एचएफ के अलावा अगर मैंने कोई हाइड्रोहेलिक एसिड आपको उठा के दे दिया तो देन अगर मैंने हाइड्रोहेलिक एसिड उठा के दे दी तो इट मींस दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड अगर कोई ऑक्सो एसिड है, बट ऑक्सो एसिड की कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? क्लास ऑक्सो एसिड की क्या कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? अगर तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 2 और ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है, तो देन वी से दैट this is a strong acid, it is categorized as strong acid। class got the point कि अगर कोई भी ऑक्सो एसिड है बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डिफरेंस 2 या 2 से ज्यादा का है तो देन वी से दैट दिस विल बी कैटेगराइज्ड as strong acid, ठीक है। लाइक HNO3 में आप देखें हाइड्रोजन 1 है, उसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है वो 3 है, ठीक है, और अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन 4 है, तो ये जो रेशियो जितनी बड़ी होगी ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डिफरेंस है जितना बड़ा होगा तो यस ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट सारे नहीं, उसके लिए कंडीशन है कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कितने ज्यादा होने चाहिए, 2 या उससे ज्यादा फैक्टर से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। देन हम एक क्लैरिटी के साथ या एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, अदरवाइज नो, अदरवाइज जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके सो दीज आर 2 एग्जांपल। अच्छा अब the next is strong base। yes, number of oxygen is directly proportional to the acidic strength, yes। बट हम यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं करें, हम तो ये कह रहे हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन से कंप्लीटली एनर्जी देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, कौन से वीकली, क्योंकि अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से अंदाजा लगाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग में आता है या वीक में आता है। जनरली तो स्ट्रॉन्ग बेस इज अ बेस दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो एसिड्स के केस में दिए, जैसे 0.50 मोलर NaOH है तो इनिशियली 0.50 मोलर NaOH को हमने यूज किया, देयर वाज नो सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, and then but all of the sodium hydroxide dissociated into Na positive and OH negative ions at equilibrium, and कोई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड नहीं रहा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये परसेंट डिसोसिएशन इसकी भी एग्जैक्टली उसी तरीके से 100% होगी, एंड सो दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज exactly equal to 1। तो सो स्ट्रॉन्ग बेसिस की निशानियां क्या क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम कैसे पहचानेंगे कि अगर तो M2O और MOH जनरल फार्मूला के साथ कोई है जिसमें अल्कली मेटल ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अटैच्ड है साथ में, तो दैट विल बी श्योरली अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। या अगर हमारे पास कोई R और ROH ट्वाइस है एंड R जो है कोई भी कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, तो दैट विल बी श्योरली we can say with a confidence that these are the strong bases। then weak acids which that ionizes partially in the water, ठीक है, they are called weak acids। और उसके लिए हम जो डिफरेंस है उसमें और इसमें ये है कि ये they do not completely ionize in aqueous solution, so that's why ion equilibrium is shown, और उसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं कि इसका मतलब है आपके पास इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी है और अनडिसोसिएटेड आपके पास रिएक्टेंट्स एसिड्स और बेसिस भी मौजूद हैं। यहाँ पे एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, और परसेंट डिसोसिएशन इज ऑलवेज लेस देन 100, ठीक है।
ओके, सो एक्टिविटी इज, इसके लिए अगर हम एक्टिविटी देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ए नेगेटिव इनटू एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एच। वाटर की तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट शोन इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। सो के ए इज इक्वल टू ए नेगेटिव इनटू एच, सबको लिखना आता है लॉ ऑफ मैस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो के वैल्यू बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हम इस किसी चीज की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर इज एक्टिविटी, एक्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसकी हम के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। नॉर्मली के ए जो हम मेजर करते हैं लिटरेचर में जो वैल्यू है दैट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर के ए की वैल्यू लेस होगी तो स्ट्रेंथ भी एसिड की लेस होगी बिकॉज एक्टिविटी विल बी लेस। ठीक हो गया। देन वीक एसिड्स की निशानियां क्या हैं? हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोहेलिक होगा बट एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई होंगे तो वो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर एच एफ होगा ऑल्दो इट इज, किसी को शो नहीं हो रही क्लास, किसी को शो नहीं हो रही, क्विकली हो रही है, हो रही है शमसा, हाँ। आप अपने एंड पे चेक करें बच्चे कि आपके एंड पे थोड़ा सा इश्यू है। जब मकसद ये है कि अगर तो पूरी क्लास के साथ एक इश्यू आ रहा है ना, तो देन वी कैन स्टॉप इट एंड देन उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी क्लास के साथ इश्यू नहीं आ रहा, तो अगर पूरी क्लास, बाकी क्लास सुन रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया उसका पर्पज ही यही है कि वहां पे आप आपस में डिस्कस करें, ठीक है। और जो पॉइंट्स किसी एक से मिस हो गए, किसी दूसरे से मिस हो गए, तो आप उसमें शेयर करें, अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। ओके, अच्छा, ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ही नहीं, आ रही। बस जिनको आ रही है वो रिस्पॉन्ड किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि प्रॉब्लम किस साइड से। मेरे एंड पे है तो सबके साथ इश्यू होना चाहिए, लेकिन अगर आपके एंड पे है तो इसका मतलब है इंडिविजुअल इश्यूज हैं आप लोगों के, ठीक है। स्लाइड को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब ये स्लाइड आपको नजर आ रही है ना, द वीक एसिड्स आर, ये उनकी, ये आपको स्लाइड सबको नजर आ रही है, स्लाइड नंबर 30। कैन यू सी द स्लाइड नंबर 30? अभी जो मैं स्लाइड शो कर रही हूँ दैट इज स्लाइड नंबर 30। कैन यू सी द स्लाइड नंबर 30? ओके, ओके। सेकंड जो निशानी है कि ये एसिड्स वीक नहीं है, तो ये वीक एसिड्स हैं। ऑल्दो दीज आर एसिड्स, बट जो एसिड्स जो हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल करें या ओनली दे आर एक्सीडिंग बाय 1 नंबर, तो दे आर आल्सो वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल लास्ट में आपने क्या किया था, HClO4, ठीक है, और HNO3। HClO4, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करें कि HF स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं है। HF में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि हाइड्रोजन भी बहुत स्मॉल है, फ्लोरीन भी बहुत स्मॉल है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। HF इजीली हाइड्रोजन को लीव नहीं करता ड्यू टू साइज, ठीक है। फ्लोरीन का वैसे भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है। सो HF इज वीक, यस, यस, साइज इज द मेजर फैक्टर, ठीक है। it strongly holds the प्रोटॉन, ठीक है। और प्रोटॉन को जो चीज जितनी मुश्किल से छोड़ेगी वो उतना ही वीक एसिड होगा। So acid in which H is not bonded to oxygen or halogen, yes, and then oxo acid जिसमें number of oxygen and hydrogen equal है या only exceed by 1 है, तो वो weak HNO3, these are strong acids, they completely ionize. लेकिन HNO2 जिसमें total only oxygen is exceeding by 1 हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, या HClO जिसमें दोनों के नंबर इक्वल हैं, दोनों दे विल बी वीक एसिड्स, दे विल बी वीक एसिड्स, ठीक है। तो ये एक और निशानी है। देन ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं विद जनरल फार्मूला RCOH, जहां पे भी आएंगे ऑल ऑफ दीज विल बी वीक एसिड्स, ठीक है।
So ये स्ट्रॉन्ग एसेट्स। लाइकवाइज आपके पास वीक बेसिस की भी कोई इसी तरह की निशानियां होती हैं कि वीक बेसिस होते हैं, बोरॉन की वाटर के साथ रिएक्ट करता है, BH पॉजिटिव, अगेन ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के साथ शो किया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज एसोसिएशन विल ऑलवेज बी लेस देन 100 एंड एक्टिविटी विल बी नहीं करते बिकॉज इट इज कांस्टेंट। केबी की वैल्यू भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेम थिंग, बट नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे लेते हैं और केबी कम होगी तो एक्टिविटी भी कम होगी। ठीक हो गया? Okay, should I move to the next slide? Again, Sam. Should I move to the next slide? Can you see the slide number 32? Class? OOH क्या होगा? ये बेसिकली ऐसे से, तो ये हो जाएगा H, ये आपके पास HCOO नेगेटिव, HCOO ये काफी टाइम ले रहा है, सो O नेगेटिव प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हमने, कि एक करना प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCOOH। तो अब ये देखें सॉल्व भी है आपके पास, ये 4.2 आपके पास अनडिसोसिएटेड है एंड सॉरी 4.2% ऑफ द फॉर्मिक एसिड डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो 4.2% का मतलब है कि 4.2 आउट ऑफ 100, 4.2 आउट ऑफ 100 जो है वो डिसोसिएट हुआ है। तो एक्चुअली ये जो इसकी कंसंट्रेशन है दैट इज 0.0042। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.0042 मोलर ओनली डिसोसिएट हुई है 0.1 मोलर में से, तो आपके पास जो अनडिसोसिएटेड है वो इतनी आती है। ठीक है क्लास, इसकी समझ आई जो मैंने आपको बताना चाहा है? 4.2% टोटल डिसोसिएट हुए, तो 4.2% इतने मोलर बनते हैं कि इतने मोलर डिसोसिएट हुए हैं। तो फिर इतने मोलर डिसोसिएट हुए तो इट मींस हमने यूज 0.1 मोलर किया था, उसमें इतने मोलर डिसोसिएट हुए, तो बाकी आपके पास 0.059 माइनस कर तो आपके पास इतना रह जाएगा। इसका मतलब है कि दिस रिमेन अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड सिर्फ इतना सा है। ठीक है ओके, सो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली के एक एक्सप्रेशन लगाएं, ठीक है, और जितनी डिसोसिएटेड है उसको डिवाइडेड बाय ये आपके पास अनडिसोसिएटेड, आप इसको इससे के ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द के ए वैल्यू फॉर इट कम्स आउट टू बी 1.8 into 10⁻⁴ मोलर। क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रही है? द कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू, इज दैट क्लियर टू यू? क्लास, नो रिस्पॉन्स। हाँ जी, समझ आ रही है ना? ठीक है, सो अब अगर हम ये करें, अब हम ये चेक कर ये इसका जो के ए की वैल्यू है, ओके, जो के ए की वैल्यू है दैट इज नॉर्मली वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए लेस देन 10⁻⁵ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है ना, ये उतना ही आता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 0% डिसोसिएट हो तो तब भी आपके पास के ए की वैल्यू तकरीबन इतनी ही आएगी। means very little dissociation of acid takes place, very little dissociation of acid takes place, means initial minus dissociated approximately comes equal to initial। इतनी ही डिसोसिएट होती है कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो ऑलमोस्ट इनिशियल के ही इक्वल आती है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक और एग्जांपल है कि अगर सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन को लेके अगर मैं इसकी के ए की वैल्यू कैलकुलेट करूं, देखें द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 0.0042। ठीक है, उस इसके साथ जब आपने किया तो आपके पास 1.8 into 10⁻⁴
Yes, this is just for the weak acids. ये सिर्फ weak acids के लिए है, not for the strong acid. Strong acid तो 100% हो जाते हैं, उसमें तो आपके पास रिएक्टेंट बचता ही नहीं है, ठीक है. दिस इज ओनली फॉर द वीक एसिड्स. अच्छा, अब आपके पास एक एक्सरसाइज है जो आपने करनी है, ठीक है. ये क्वेश्चंस हैं कुछ. एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट दिस टेंपरेचर इज दिस वन फॉर a solution of 0.20 molar HF. Calculate the concentration of hydronium ion at the equilibrium degree of dissociation. ये आप कैलकुलेट कर लेंगे. अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये आप इजीली कर लेंगे ना, क्योंकि Ka की वैल्यू आपको गिवन, सॉरी, HF की आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है. तो ये आप कर सकते हैं. देन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट का कर सकते, तो बेस डिसोसिएशन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. और आपने यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा करना है, यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन करना है. जस्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो वो आपके पास परसेंट डिसोसिएशन आ जाएगी. कैन यू डू इट? ओके ओके, मैं आपकी चेक करूंगी, ठीक है. नेक्स्ट में आपने मुझे बतानी है, ठीक है. गुड. ओके, द वाटर. उसके बाद आपके पास जो इससे लिंक्ड एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज वाटर एंड द पीएच स्केल. अच्छा, प्योर वाटर क्या है? एक गुड इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? प्योर वाटर इज प्योर वाटर अ गुड इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट? यस, वाटर जो होता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. अभी हमने पढ़ा था अगर 1 × 10⁻⁵ से लेस जिसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा दैट विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो इट मींस कि आयन इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एप्लीकेबल टू द वाटर एज वेल. तो वाटर के साथ अलबत्ता ये है क्योंकि वाटर एक एक्सीलेंट सोर्स है फॉर द प्रोविजन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एज वेल. दोनों ही एसिड और बेस एंड बिकॉज ये एम्फोटेरिक भी है. लूरी बॉन्ड स्टडीज को भी सपोर्ट करता है कि ये एम्फोटेरिक है और प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों प्रॉपर्टीज शो कर सकता है. आर्हीनियस जो है वो ये कहता है कि वाटर जो है H पॉजिटिव आयन देता है, ये OH नेगेटिव आयन भी दे सकता है, ठीक है. सो water and pH scale, how they are related to each other. When the water molecule is ionized तो क्या होता है? H positive ऑटो, इसको हम ऑटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं ना, ठीक है. तो water molecule produces H3 positive and OH negative ions. So what is the Ka value at 25 degrees Celsius? It is 1 × 10⁻⁴. सबको ही पता है 1 × 10⁻⁴. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट वाटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट. सो दैट्स Kw is the H3O positive constant into constant is another constant, that is Kw, ठीक है. H3O positive into OH negative. Kw is the ionization constant of water at 25 degrees centigrade, ठीक है. Okay, and so for pure water at 25 degrees centigrade H3O, प्योर वाटर एक तो ये है कि प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, लेकिन दूसरी बात ये कि वैसे भी H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो रेशियो है, मोल रेशियो, दैट इज इक्वल टू 1 × 1. सो जो इनकी कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन की एंड OH नेगेटिव की -7 मोलर. सबको ये पता है, ऐसे ही है ना. ओके, एंड Kw जो है दैट इज द अभी आप पढ़ के हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन. तो दैट कम्स आउट टू बी 1 × 10⁻⁴ मोलर्स, ठीक है. 1 × 10⁻⁴ मोलर. तो इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है. जैसे हमने Ka और Kb के केस में पढ़ा, ठीक है. ओके, तो नाउ why pH scale is used. अभी हमने pH की नहीं है, but why pH scale is used? pH scale is used to express the acidity, ठीक है. pH scale is used to express the acidity, but what exactly the pH scale is? pH scale is the negative logarithm of the hydronium or hydrogen ion concentration in aqueous solution. negative log of hydrogen ion concentration, ठीक है. अच्छा,
बिकॉज ये जो नॉर्मली कंसंट्रेशन होती हैं दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में सिंपल डिजिट्स की फॉर्म में आंसर अपना लेके आते हैं, तो उसको हम लॉगरिथमिक वैल्यूज को हम पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, लाइकवाइज पीओएच जो है दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, okay, so Kw again for pure water Kw का expression लिखते हैं H3 positive into OH negative, that comes out to be equal to 1 × 10⁻14, and in neutral water the H3 positive is equal to OH negative, that is equal to 1 × 10⁻7. ठीक है, तो pH is equal to POH. So that's why pH is equal to POH, and negative log of 100 to 10⁻7. pH is equal to, for neutral water pH is equal to POH is equal to 7, and pH plus POH will always be equal to 14. But remember this will be at 25 degree centigrade. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज करेंगे तो आपके पास वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 होती है, बेसिक सॉल्यूशन की पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, और पीओएच ग्रेटर देन 7 होती है, पीएच इसके रिवर्स होता है। ठीक है, एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच 7 होती है और पीओएच भी 7 होती है। ठीक है, ओके, देन आपके पास OH की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है और वहां से आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। पहले आप पीओएच कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपने पीएच कैलकुलेट करनी है 14 माइनस पीएच से। ठीक हो गया? यस, यू विल डू इट, यू विल डू इट। ओके, then pH of rainwater is given and you have to calculate the H positive ion concentration. आंसर भी दिया हुआ है, you can do it easily, कर सकते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी।
पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आयनाइजेशन ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। तो अब वाटर जो है क्योंकि 100% H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस जो सिस्टम की पीएच होगी वो कितनी होगी 7। तो इसका मतलब है ये जो प्रीवियस हमने रिएक्शन, ये हमने प्रीवियस रिएक्शन पढ़ा है उसमें आपके पास जो पीएच होगी दैट विल बी 7। इस सिस्टम की आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन पीएच 7 होगी। क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर हम एक काम कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पे कनेक्टिविटी का इश्यू आएगा आफ्टर 12:30, तो मैं चाह रही हूँ कि विदाउट बजाय इसके हम ब्रेक ले लें। हमारे कॉन्टिन्यूटी में सेशन चल रहा है, क्लास हम ब्रेक नहीं लेते, हम ब्रेक नहीं लेते। लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम द ऑफिस। और मैं चाह रही हूँ कि हम कंटिन्यूस सेशन लें। और ओके ओके देन वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। मैं खुद को म्यूट कर रही हूँ, कहीं पे जाना नहीं है, ठीक है। anion and cation of the salt with the water molecule। अभी हमने जो पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए, उसमें ये चीज तो है ही नहीं वैलिड। वाई? उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी क्योंकि एनायन और केटायन दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज नहीं होते। बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये कौन से सॉल्ट्स हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं? ये दो तरह के सॉल्ट्स हैं, एसिड सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। So acidic salts or basic salts have the ion that undergo hydrolysis in aqueous solution। इसकी हम एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो pH of the solution depends on whether OH negative or H3 positive is produced during the hydrolysis। अब हमने देखना है कि जब हमने एक एसिडिक सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, केटायन या एनएन जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। लाइकवाइज बेसिक सॉल्ट जो हैं उसकी जब हमने डिसॉल्व किया है, ठीक है, तो वो उसकी उसमें भी केटायन या एनायन वाटर जिसकी भी अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो अब आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो हमारे पास सिस्टम होगा, सोल्यूशन होगा, उसकी पीएच क्या होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोलिसिस के दौरान या H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोलिसिस के दौरान, ठीक है। तो उस पे डिपेंड करेगी पीएच की वैल्यू। तो वी विल सी कि समटाइम्स आफ्टर acid salt hydrolysis the pH of the system is greater than 7 and in some cases pH value is less than 7। so we will see कि how a salt hydrolysis से जो सिस्टम की पीएच किस तरह से इफेक्ट होती है। तो ये आपके पास बेसिक सॉल्ट्स की सबसे पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं कि पहली बात ये है कि बेसिक सॉल्ट्स होते क्या हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक सॉल्ट है। तो एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करता है, वीक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट होता है वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। वहां पे बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो करेक्टर भी बेसिक आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो करेक्टर भी बेसिक आएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट विद बी वीक सॉरी बेसिक सॉल्ट। ओके, प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव एंड हाइड्रोलाइज्ड। हाउ? इसको हम देख लेते हैं कैसे ये होता है। CH3COONA, CH3COONA जो है ये आपके पास एक सॉल्ट है एंड दिस सॉल्ट ये कहाँ से आता है? ये सॉल्ट है CH3COOH वीक एसिड प्लस NaOH, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ऐसे ही है ना क्लास? CH3COONA is a salt of weak acid and strong base, ठीक है। तो ये जब आयनाइज होता है तो Na पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव देता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब Na पॉजिटिव बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी आयन स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, वो जस्ट सॉल्वेट होता है, ठीक है, वो जस्ट आयन ही रहता है। लेकिन CH3COO नेगेटिव इट इज कमिंग फ्रॉम द वीक एसिड, ठीक है। तो सो दैट्स वाई ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन ये हाइड्रोलाइज हो जाता है तो ये वाटर को कैसे ब्रेक करेगा? हम नेक्स्ट में इक्वेशन में देख लेते हैं कि हाउ इट विल ब्रेक वाटर। ये क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है, CH3CO नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव को ले लेगा और CH3COH बना देगा एंड OH नेगेटिव बना देगा, OH नेगेटिव होगा। तो जब किसी सिस्टम में OH नेगेटिव होगा
तो सिस्टम क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। इन मीन्स इसकी पीएच बेसिक उसमें फॉल करेगी या एसिडिक रेंज में फॉल करेगी। OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव बेसिक में फॉल करेगी। तो बेसिक क्या होती है, 0 to 14 पीएच रेंज होती है। तो 0 to 7 क्या होती है, लेस देन 7 क्या होती है, एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 क्या होती है, बेसिक। सो इट मींस कि जब भी हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट होगी तो जो पीएच सॉल्ट सॉल्यूशन की होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 7, दैट विल बी ग्रेटर देन 7। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सोडियम साइनाइड NaCN इज अ सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रांग बेस NaOH इज रिएक्टेड विद अ वीक एसिड HCN। तो आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है टू शो द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCN, जिससे NaCN आपके पास फॉर्म होता है। एंड व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड पीएच ऑफ NaCN सॉल्यूशन आंसर यूजिंग द इक्वेशन। आप कर सकते हैं इजीली, दिस इज वेरी सिंपल क्लास, यू कैन डू इट, दिस इज वेरी सिंपल। Should I move to the next slide? गुड। ओके, सो एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो दे आर derived from the strong acid and weak base, so they form H3O positive when hydrolyzed। so जो acidic salt की जो pH होगी that will be less than 7, it will be lying in the acid region, एसिडिक पीएच रेंज। NH4Cl जो है वो NH4OH और HCl से बना है, मीन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। तो NH4 पॉजिटिव बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वीक बेस, एंड Cl नेगेटिव इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। Cl नेगेटिव हाइड्रोलाइज नहीं होगा बिकॉज जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से डिराइव होता है वो उसका वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। जबकि NH4 positive जो है it will undergo hydrolysis, and how it will undergo hydrolysis, it will react with water like this and it will form NH3 plus hydronium ion। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन होगा सिस्टम की जो पीएच होगी that will fall below 7। so जो आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्ट की जो पीएच होगी, सॉल्ट सॉल्यूशन की जो पीएच होगी that will be less than 7। ठीक हो गया। Then there is another example, CH3NH3Cl, ये salt CH3NH2 बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का सॉल्ट है। अगेन आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है और फिर आपने एक्सपेक्टेड पीएच रेंज बतानी है, लेस देन 7 होगी ग्रेटर देन 7 होगी, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Then comes very important concept of a very important topic, that is buffer solution। ठीक है, ये buffers क्या होते हैं, buffer is an हमने क्या पढ़ा ion equilibrium में the concept of strong electrolyte and weak electrolyte, then we discussed the acid base theories, then we discussed the concept of acid base hydrolysis, and now we are going to discuss the solution। now this is the fourth concept। ठीक है, ion equilibrium की continuation में आ रहा है कि buffer solution। अच्छा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, as you all know the buffer solution maintains the pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज एडेड टू इट, तो वो उस पीएच चेंज को विथस्टैंड करता है, उस पीएच को मेंटेन रखता है, उसकी पीएच चेंज नहीं होती। तो बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं विच नीड्स टू बी बफर्ड, वो किसी एक पीएच पे जो है वो ये स्मॉल एक रेंज होती है, बफर कैपेसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अगर एसिड या बेस अगर उसके अंदर गिर भी जाए सिस्टम के अंदर तो उससे उसकी पीएच इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम उस पीएच रेंज में जो वर्क कर सकता है। बहुत सारे डेली लाइफ में सॉल्यूशंस ऐसे चाहिए होती हैं जो हम चाहते हैं कि इसी पीएच रेंज में रहे, इससे चेंज ना हो, तो उसके लिए हम बफर सिस्टम बनाते हैं। बफर सिस्टम कैन विथस्टैंड और इट कैन मेंटेन इट्स पीएच विद इन अ सर्टेन रेंज। ठीक है,
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जब उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसको हम वी विल सी के हाउ इट वर्क्स। ओके, आई टेल, ये बफर कैपेसिटी होती है, आई टेल, हम आगे इसी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब how this buffer can be formed, how this buffer can be formed, it contain weak acid or weak base, ठीक है, but it's salt with that has its conjugate pair, means weak acid plus salt of it with the strong base, weak acid plus salt of it, जो एसिड यूज करेंगे उसी का सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी उसी के कॉन्जुगेट, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो हमने बीच में पीछे पढ़ा है ना लोरी ब्रॉन्स्टेड का, उसको पढ़ने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि we have to use a weak acid and its salt with its conjugate pair, weak acid and its salt with the conjugate pair, likewise weak base and its salt with the conjugate with its conjugate acid। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है और एक आपके पास बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एसिडिक बफर, अगेन अभी आपने पढ़ा है एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी एसिड्स तो हमेशा वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अब आप देखें कि pH will be definitely less than 7, an acidic buffer solution is made up of a weak acid, you can see weak acid and its salt containing its conjugate base, and its salt containing its conjugate base. This is weak acid CH3COH, this is weak acid, and this is the salt of its conjugate base, its salt, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट है, लेकिन इसी का सॉल्ट है CH3COOH एसिड का जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है उसका सॉल्ट है CH3CONA, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड, यस, सिंपली सॉल्ट ऑफ दिस एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, बट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये आपके पास एक बफर, और इस बफर की जो दैट विल बी कॉल्ड द एसिडिक बफर, ठीक है, एंड इट्स pH विल बी लेस देन 7। ओके, देन डिसोसिएशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्योंकि हाउ बफर एक्ट हमने ये भी देखना है कि आखिर बफर अपनी जो pH है उसको चेंज क्यों नहीं करते, बफर व्हाई द बफर resist a change in pH over a certain pH range, या when small amount of acid or base is at the how buffer act, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि वी हैव टू थिंग्स, एक हमारे पास वीक एसिड है एंड दूसरा हमारे पास सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड अगर देखें तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन से शो किया हुआ है, बिकॉज इट डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। ये देखें, ये पूरा प्रीवियस हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। वीक एसिड ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, हमने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन से शो किया, H पॉजिटिव एक्वस प्लस CH3COO नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा जिसमें हम पार्ट ऐड कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट है, and you know this is a strong electrolyte, this is strong electrolyte and it will completely dissociate into CH3COO negative plus Na positive। अब इसमें ये completely आयनाइज हो गया है, ठीक है, और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपने इसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन से शो कर दिया, ठीक है। अब CH3CONA dissociate completely and produces high concentration of CH3CONA। अब ये क्योंकि completely dissociate हो गया तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट में CH3CO नेगेटिव बना देगा, जबकि फर्स्ट में ये देखें ये वीकली डिसोसिएट हो रहा है और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में CH3COO नेगेटिव बनाएगा, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में CH3CO नेगेटिव आयन बनाएगा, but because both of them are in the same system, both of CH3COOH and CH3COO are there in the same system, तो ये जो कॉमन आयन है ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन सिस्टम के अंदर बढ़ जाएगी। See, due to this strong electrolyte CH3COO negative आयन की कंसंट्रेशन सिस्टम में इंक्रीज हो जाएगी। तो अब this will disturb the equilibrium, this will disturb the equilibrium। जब प्रोडक्ट ली-शैटलियर प्रिंसिपल आप लोगों को आता है, what is ली-शैटलियर प्रिंसिपल?
व्हाट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल? ओके, मतलब हमने क्या किया था, हमारे पास एक थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, मैं आपको एक समझा देती हूँ, अगर जिनको नहीं आता मैं उनको समझा देती हूँ। ली शैटलियर प्रिंसिपल ये है, ओके 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 ओके, जिनको नहीं आता दिस इज फॉर देम, ठीक है। सिंपल, अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इस ये दो इक्वेशन हमने लिखी हुई हैं, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना, ठीक है, ये सिस्टम पहला वाला जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम की बात तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती, ठीक है। इक्विलिब्रियम की बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होती। तो अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन शो की हुई है, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दी है। जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दी है, तो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया है, CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट की साइड पे बढ़ा दी है। अब प्रोडक्ट की साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नहीं रहा, बल्कि डिस्टर्ब हो गया है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। तो अब सिस्टम खुद को रीअरेंज कर लेगा, और सिस्टम अपने साथ कुछ इस तरह का करेगा कि वापस इक्विलिब्रियम गेन हो जाए, वापस इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे करेगा, अब क्योंकि प्रोडक्ट की साइड पे कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, दिस इज ली शैटलर प्रिंसिपल कि कभी अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद को इस तरह से इस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाए। ठीक हो गया, ताकि इक्विलिब्रियम, यस, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप देखें, अब इसके अंदर जब कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव की बढ़ गई है, तो वापस इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए थोड़ा सा CH3COOH वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर CH3COH मजीद बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टेब्लिश हो जाए, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टैब्लिश हो जाए। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो CH3CO Na completely dissociate and produce CH3CO negative. The high concentration of CH3OO negative will disturb the equilibrium of the dissociation of ethanoic acid CH3COOH. Got the point? Class got the point? यहाँ तक बात समझ आ गई है? गुड। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने आपने देख लिया कि किस तरह से सिस्टम बिहेव करेगा टू दिस चेंज। अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से CH3COOH जो है वो लेस डिसोसिएट होगा, क्योंकि अब देखें, सॉरी, ओके ओके, अब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ चला जाए। CH3COOH जो होगा वो दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, CH3 ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी आयनाइजेशन मजीद कम हो गई, ये मजीद कम डिसोसिएट होना शुरू हो गया है, ठीक है। सो CH3CO equilibrium of acid shift backward, less CH3COH dissociates. Solution now has high concentration of CH3COOH from the weak base and its conjugate base ion in CH3COO negative from the salt, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन में जो CH3COOH की कंसेंट्रेशन है वो दैट इज ग्रेटर, दैट इज, and it dissociates into H positive CH3CO negative only partially dissociates into these ions, and what happens कि जब हम इसमें strong electrolyte डालते हैं which completely dissociates to produce CH3CO negative and N positive, तो ये CH3COO negative ions की concentration को बढ़ा देता है, और जब प्रोडक्ट की साइड पे CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो देन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। इस इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए सिस्टम इस तरह से एडजस्ट होता है कि दोबारा से CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर CH3COOH बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। So it means कि अब now we have more amount of undissociated CH3COOH in the solution, ठीक है।
So equilibrium of acid shifts backward, less CH3CO OH dissociates, यानी अब आपके पास